हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और वेलकम टू केटी क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हमारा एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये दो टर्म्स के बारे में स्टडी करना है। ये क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, दिस बोथ कम अंडर द एलिमेंट्स। Elements is substance which occur on the earth. So elements has two divisions, that are metal and non-metal. Elements के जो है ना two divisions होते हैं, first metal होता है, दूसरा non-metal. So let's start about what are metals. Metals होते क्या है? Actually metal a solid material which consists of following 5 physical properties. मतलब इसकी physical properties कितने हैं? 5 physical properties है, जिसके basis पर इसे metal कहा जाता है. So let's start the what is the physical properties which classify the metal. So first is metallic luster. So what is meant by metallic luster? The meaning of this metallic luster is shine. So usually हमने बहुत बार देखा है कि हम जो metals means gold is also a metal. So हम ladies कई बार उसका gold के है ना ornaments बनाती है, ज्वेलरीज, जो कि बहुत shine करते हैं. So it is one of the property of metal. metal की प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं metallic luster. This property is called as metallic luster. और इस प्रॉपर्टी से जो गोल्ड मेटल के अंदर आता है, so it will also shine. Then we will see about hardness. Second property, physical property of metal is hardness. What is mean by hardness? Hardness means it is somewhat hard. Means जैसे कि it will not easily bend. जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जो बेंड हो जाते हैं इजीली, कॉपर वायर, जैसे हमारा कॉपर. और गोल्ड जो होता है वो मतलब इतना उसके अंदर हार्डनेस उतनी नहीं होती, मतलब इजीली इट कैन बी बेंड. सो सम मेटल जो होता है वो बहुत ऐसे सॉफ्ट होता है. सो इसके अंदर हम ज्वेलर्स होते हैं वो कॉपर ऐड करते हैं जिससे कि हार्ड बन जाए जो ऑर्नामेंट्स होते हैं. क्योंकि 24 कैरेट जो गोल्ड बोलते हैं वो एक्चुअली 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है, वो ओनली 95% इट इज गोल्ड एंड 5% इट मे बी कॉपर और दे विल ऐड सम अदर elements also. Then hardness. So here the hardest metal in the world is tungsten. Tungsten is a filament which is used in many times you will see in heater. In heater it is used as tungsten filament and it is so hard. It is the world hardest metal, natural occurring. Then we will see high melting point. So high melting point क्या होता है? जब हम किसी मेटल को फायर करते हैं तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है, उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. सो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का. देन वी विल सी अबाउट malleability. व्हाट इज मीन बाय malleability? Malleability means a metal, if see we taken here a metal and we are beating it with hammer. One person is staying here and he is beating it with hammer and he form a thin and long sheet. So this is the property of a metal which is known as malleability. Malleability में a metal can be drawn into thin sheets. So इसके एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर. सो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गोल्ड बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, वो तो हार्ड नहीं होता है. सो वो आसानी से एक थिन शीट्स, और सिल्वर आल्सो इज वेरी सॉफ्ट मेटल. सो ये दो जो मेटल होते हैं वो इजीली हम थिन शीट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं. देन वी विल से अबाउट डक्टिलिटी. व्हाट इज मीन बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज समवट सेम एज malleability. malleability में हम यहाँ एक थिन शीट्स बना लेते हैं, बट अब हम इस मेटल में से एक लॉन्ग वायर फॉर्म करेंगे. एंड यू विल बी सरप्राइजिंग टू नो दैट फ्रॉम गोल्ड 2 किलोमीटर ऑफ वायर कैन बी ड्रॉन. सोचा था कभी 2 किलोमीटर वायर? सो 2 किलोमीटर ऑफ दैट मच लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली 50 grams or 100 grams of gold. So this much ductility gold have. Ductility means forming thin wire. Ductile. What is meant by duct? Duct is like tube like structure. Duct means so forming a ductility, forming a long thin wire. Then we will see good conductor of electricity. The metals are very good conductor of electricity. The very good conductor of electricity is silver. Silver is and come under good conductor of electricity, but it is somewhat expensive. So the electricians use copper instead of silver. Silver is very good conductor of electricity, but it is too costly. Its cost is too high.
So they will use copper in the wires to supply the electricity. Then we will see sonorous. What is meant by the sonorous? Sonorous means when a metal is beaten by hammer, it produces sound. This is the property of metal. एक मेटल की प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी एक मेटल को बीट करते हैं, जैसे कि हम आयरन, जो स्कूल में बेल होती है, बेल वो आयरन की होती है. क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सोनोरस. जब भी वो बीट होता है किसी चीज से, तब उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है. तो मोस्ट सोनोरस मेटल इज सिल्वर. सिल्वर बहुत सारी चीज़ों में आता है, क्योंकि सिल्वर इज अ वेरी गुड मेटल. मीन्स ये यहाँ पर भी आया था, देखिए मेटेलिक क्लस्टर में भी गोल्ड के साथ सिल्वर भी आता है. सिल्वर का भी मेटेलिक क्लस्टर होता है, बट सबसे गोल्ड से भी ज़्यादा एक मेटल का मेटेलिक क्लस्टर होता है, उसे कहते हैं प्लैटिनियम. सॉरी आई फॉरगेट टू राइट हियर, दैट इज प्लैटिनियम. गोल्ड से भी ज़्यादा इसका मेटेलिक क्लस्टर होता है. फर्स्ट प्लैटिनियम, सेकंड गोल्ड एंड देन सिल्वर कम्स. सो सिल्वर बहुत सारी चीज़ों में आया, जैसे सिल्वर यहाँ पर आया, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी में सिल्वर था, और ये सोनोरस में भी सिल्वर है. देन we'll see about, here we classify that metals. So what is the property of metals? Metallic cluster, hardness, high melting point, malleability, ductility, good electric conductor and sonorous. So here we discuss about the property and how can we classify the substance which consists this 5. ऐसा कोई substance जो ये 5 properties है जिसके अंदर, उसे हम मेटल कहते हैं. सो व्हाट इज नॉन मेटल? सो द सिंपल डेफिनेशन फॉर इट इज एन एलिमेंट और अ सब्सटेंस दैट इज नॉट ए मेटल. अब वो मेटल नहीं होगा तो क्या होगा? अब मेटल नहीं होगा तो क्या होगा? उसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज नहीं होंगी. फर्स्ट, जो हमारी मेटालिक क्लस्टर है, मतलब जो नॉन मेटल्स, यूजुअली जो नॉन मेटल्स होंगे वो शाइन नहीं करेंगे. जैसे कि हमारा बहुत सारे नॉन मेटल्स है जो शाइन नहीं करते हैं. और फिर बाद में हार्डनेस, बहुत सारे नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते. एंड मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. देन वी सी हियर दिस मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी मीन्स दे कैन नॉट बी ड्रॉन इन थिन शीट. जैसे कैल्शियम, कैल्शियम इज ए नॉन मेटल. अब कैल्शियम को अगर हम बीट करेंगे तो उसका एक पाउडर बन जाएगा, नॉट एन थिन शीट में वो फॉर्म नहीं होगा, उसका एक पाउडर बन जाएगा. वैसे हम अगर लेंगे ये डक्टिलिटी, वो डक्टिलिटी में भी फॉर्म नहीं होगा, उसका भी एक पाउडर बन जाएगा. और सोनोरस तो होते ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स सोनोरस होता ही नहीं है उसके अंदर. बट when scientists introduced this physical property that was so earlier, then before they think about that कि ये जो 5 physical properties है वो enough नहीं है. क्यों enough नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कुछ exceptions है. जैसे कि बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स है जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी बताते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेटल्स है जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बताते हैं. सो दे थिंक दैट कि ये 5 मेन प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सो here is one statement, but physical properties are not sufficient to classify the metals and non-metals. इसीलिए मतलब अब बहुत सारे एक्सेप्शंस होने के बाद फिर डाइवर्सिटी हो जाएगी. डाइवर्सिटी होने के बाद मतलब एक एलिमेंट ए है, अब वो एलिमेंट ए सारे प्रॉपर्टीज बता रहा है मेटल के, एक्सेप्ट मेटेलिक क्लस्टर. अब इससे अलग कैसे किया जाए? सो उसलिए साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द एक्सेप्शंस, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेनी एक्सेप्शंस इज, मैं जो कहा था कि बहुत सारे एक्सेप्शंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज में. जैसे कि हम फर्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ऑल द मेटल्स आर हार्ड, बट मर्क्यूरी इज ओनली द metal which remain liquid at room temperature. Then we will see about gallium. Gallium and कैशनियम has very low melting point. ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं गैलियम एंड कैशनियम, इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड का भी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस. ये इतने, इसका इतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, अगर आप इसे अपने पाम पर भी रख देंगे तो इट विल मेल्ट. देन वी विल सी अबाउट दिस डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस. डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, एंड इससे ज्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस अभी तक मिला नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज ए ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल. कार्बन जो है हमारा नॉन मेटल है, और ये इसका ही ऑलोट्रॉप है, डायमंड इससे ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. सो ये हमारा हार्डनेस जो होता है कि मतलब कई जो नॉन मेटल है वो
हार्ड नहीं होते, बट डायमंड इज हार्ड. दिस इज वन ऑफ द, this is also an exception. These three are the exceptions. Then it has very low, very high melting point. Sorry for that. It is has very high melting point. अगर ये hard है तो इसका high melting point भी होगा. तो इसका जो melting point है वो बहुत ज़्यादा है, कॉपर से भी ज़्यादा जो हमारे मेटल है. So this is one of the exception. Then graphite. Graphite is also an allotrope of carbon. ये भी कार्बन से बना होता है ग्राफाइट. और ग्राफाइट जो होता है, ग्राफाइट का एक फिनोमेना होता है जिसकी हम ये पेंसिल में, आई विल गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. जो हेक्सागोनल ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये सारे ऐसे इस फॉर्म में अरेंज होते हैं. सॉरी, ऐसे ही कुछ होता है. सॉरी, एक मिनट. ऐसे होता है ये ऐसे. सॉरी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, क्या है ना, ड्राइंग के पीरियड में मैं कुछ करता नहीं था. सो ऐसे ही कुछ होता है. सो जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो इसकी एक एक जो प्लेट होती है वो पेपर पे उतरती जाती है, जिससे कि हमारी पेंसिल आगे चलती है. ग्राफाइट वही है. सो हाउ पेंसिल वर्क ऑन अ पेपर, दैट इसके एक के ऊपर एक डंबल लेयर होती है. अब ये जैसे हम पेंसिल इस पर ऐसे लाइन मारते हैं तो ये एक जो प्लेट होती है उस पर उतरती जाती है और हमारी पेंसिल मूव ऑन करती है पेपर पे. सो दिस इज द phenomenon of pen and paper. It is somewhat extra information for you. It is not included in your book. In this chapter, not included. In other chapter like carbon and its compound, it is there. Then, so where are we here? Graphite is a good conductor of electricity. It is a very good conductor of electricity. Then alkali metal are so soft that they can be cut. मतलब हमने जो मेटल की एक प्रॉपर्टी देखी थी यहाँ पर, हार्डनेस. सो वो प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करते हैं. बाकी सब प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं इसका. बाकी सब जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कलाई मेटल फॉलो करते हैं, बट एक्सेप्ट दिस टूल्स दैट दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड एंड दे कैन बी कट बाय नाइफ. अगर हम नाइफ से भी उसे कट करते हैं तो वो कट हो जाते हैं. एंड दैट मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है. जैसे, और इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आर सोडियम यानी लिथियम. दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्कली मेटल. अल्कली मेटल के जो एग्जाम्पल्स है. एंड देन इन नेक्स्ट, दिस इज पार्ट फर्स्ट. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस metals and non-metals, in that some reactions are there, and then we will see about the formation of metal and non-metals. So thanks for watching this video.